Assalamu alaikum students. Today I will teach you all the chapter A Girl with a Basket by William C. Douglas. Now, William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of America, and when in 1950 when he came to India, during his visit to India, the writer traveled from New Delhi to Ranikhet by train. In this lesson, he describes his journey and experiences during his visit to India. And the train in which he was traveling was a stopping train. Means जो ट्रेन थी वो हर स्टेशन पे रुकती थी. And the platforms were packed with people like Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Means there were many types of people. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. Means they were wearing loose clothes. उनके जो कपड़े थे बहुत ही लूज थे and they were in white in color. Means the Indian dress which in 1950s were people used to wear. And what the writer is saying, he would ask at least 3 people before he could find one who spoke English. Means वो 2-3 लोगों से पूछता था. जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरते थे तो वो 2-3 लोगों से पूछते थे, फिर कोई एक उनको ऐसा जाके मिलता था जिसको इंग्लिश आती होती थी. Then he would ask about the world affairs and the topic about the news and daily affairs. Why? Because he was trying to feel of the pulse of the nation. वो हमारी इंडिया के बारे में वो जानना चाहते थे, इसलिए वो ये करते थे कि हर स्टेशन पे वो उतर करके लोगों से बातें करते थे. Now the route lay through one of the richest of India's agricultural areas. Now in this passage, the third para, in this para means when he was traveling from Ranikhet to Delhi, from New Delhi to Ranikhet, the scene which he saw, whatever he saw during his journey by train, it is described in this third para. Means the jungles, the animals, the villages and everything, as all have already read the chapter. Now at one station, my routine of talking with the people was interrupted. Interrupted means what? जब वो एक स्टेशन पे जब वो उतरे, इंटरप्टेड मीन्स किसी को रोक देना बीच में किसी की कन्वर्सेशन में. एज सून एज आई अलाइटेड, वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा नीचे, द चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी. दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वुवन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स. मीन्स जो बच्चे थे वो बास्केट्स बेच रहे थे जो कि हाथ के बने हुए थे, जो रीड बास्केट्स होते थे और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन के थे. एंड दे वर शाउटिंग. नाउ व्हाट द राइटर इज सेइंग, I did not know, but conveying unmistakably their desire. Means the writer was not knowing Hindi, but what he is saying कि मुझे ये तो समझ में नहीं आया, but I knew the intention. Means मुझे ये पता चल गया कि वो इसे बेचना चाह रहे हैं. Now this passage is very important. These were refugee children. When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. Means as you all know, when there was partition between India and Pakistan, there were many people who came from India to Pakistan, and there were many people who came from Pakistan to India. How many people? 9 million people left Pakistan and came to India. Why? Because of the fear of religious fanatism. The Hindus which were living in Pakistan came to India. So they were homeless, they were jobless. अब जब वो वहाँ से यहाँ चले आए, उनके पास ना घर था ना जॉब थी, तो हुआ क्या? टू लीव देयर लाइवलीहुड, अपनी रोज़ की ज़िंदगी अपनी चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? जो पेरेंट्स थे वो बास्केट्स बनाते थे एंड द चिल्ड्रन, और उनके बच्चे क्या करते थे? वो स्टेशन पे आके उसे बेचते थे.
They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. As it is understood कि जब कोई किसी जगह को छोड़ के जब दूसरी जगह जाता है तो वो अपनी हर चीज़ें लेके नहीं जा पाता. सो वॉट एवर दे कुड कैरी, जो वो हैंडल कर सके, वो वहाँ से वो पाकिस्तान से लेके वो इंडिया आ गए. Now, there is 1 meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. Means he is telling the meal that the people used to eat. $100 a year is not $2 a week. Means they earned a very small amount. So they had to buy the So it was hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. Means जो वहाँ के जो लोग थे वो खुद ही इतने गरीब थे कि वो एक बास्केट को खरीदना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था. तो इसीलिए राइटर क्या कह रहे हैं, व्हेन दे सॉ द राइटर, ही वॉज एन अमेरिकन, दे डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट. लोकस्ट क्या है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में टिड्डी. इट इज़ एन इंसेक्ट जो खेत में होते हैं. तो क्या कह रहे हैं वो कि एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन. तो उन लोगों को क्या लगा कि ये अमेरिकन है तो ये भाई अच्छे हमारे कस्टमर होंगे, ये अच्छी खासी हमारी सेल बिक्री करवा सकते हैं. तो अब इसके बाद वाले चैप्टर पैरा में राइटर ने क्या कहा कि आई बॉट वन टाइनी बास्केट. मीन्स ही इज टेलिंग ऑल द थिंग्स विच ही बॉट एंड हिज हैंड वॉज फुल विद द बास्केट्स. बहुत सारी चीज़ें जो उसने खरीदी. अब उसके बाद दिस पैरा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी. राइटर क्या कह रहे हैं, वेन ही बॉट ऑल द बास्केट्स एंड ऑल, आफ्टर दैट द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर मीन्स एक 9-year-old गर्ल जो इसके हाथ में भी बास्केट थी और उस बास्केट में एक हैंडल भी लगा हुआ था और वो उस बास्केट को बेचना चाह रही थी. एंड व्हाट शी वांटेड, उसकी प्राइस उसने क्या लगाई, ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 cents. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर. मतलब वो इतनी उससे रिक्वेस्ट कर रही थी और उसके आंखों में आंसू भी थे. शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स डैट वुड रिंग एनी हार्ट. राइटर क्या कह रहे हैं कि वो इतने उससे वो रिक्वेस्ट कर रही थी, मतलब किसी को भी रहम आ जाएगा उस पर कि वो उसे खरीद ले. बट राइटर क्या कह रहे हैं, माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम. मीन्स उसके पूरे हाथ फुल थे उसके बास्केट से और उसके पास, और उसको नीड भी नहीं थी, उसको ज़रूरत भी नहीं थी उस बास्केट्स की, लेकिन बस ऐसे उसने उसे ख़रीद लिया था. तो उसने क्या किया, आई रीच्ड into my right coat pocket and got a handle of change, perhaps 15 cents in all. देखो राइटर को कितना मिला, 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young children held imploringly before me. हुआ क्या, जब राइटर ने सोचा कि what he thought कि चलो मैं ऐसे ही इसको, मतलब मुझे बास्केट की तो ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इसे 15 cents जो मेरे पास है मैं इसे दे देता हूँ. लेकिन जैसे ही राइटर ने उसको उस गर्ल को दिया, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन, द राइटर इज़ टेलिंग ऑल्सो कि मतलब उसने एक्सप्लेन भी करना चाहा कि मतलब उसको बास्केट की अब ज़रूरत नहीं है. लेकिन हुआ क्या, दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ द स्टार्वेशन रेज्ड हर चिन, reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. राइटर क्या कह रहे हैं, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. राइटर को लगा कि वो लड़की उस पैसे को ले लेगी, बट वॉट हैपेंड, द चाइल्ड ऑफ 9, राइटर क्या कह रहे हैं कि द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स, मतलब एकदम ख़राब कपड़े में और एकदम एज टू स्टार्वेशन, एकदम भूखी, उसने क्या किया, विथ ऑल हिज प्राइड, उसने उस पैसे को वापस उसे राइटर को उसने लौटा दिया. देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू. अब राइटर क्या कह रहे हैं, अब एक ही चीज़ रह गई थी, द लास्ट ऑप्शन वॉज टू बाई दैट बास्केट.
शी वाइप्ड हर आईज, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म। अब राइटर क्या कह रहे कि जैसे ही लेकिन मैंने उस बास्केट को ख़रीद लिया तब फ़ौरन दैट वुड एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। अब जैसे उसने ख़रीद लिया, उसने शी वाइप्ड हर आइज़, उसने अपने आंसू पोंछे और वो फ़ौरन हंसती हुई प्लेटफॉर्म से वो चली गई, ये सोच के कि एटलीस्ट आज के दिन मुझे 30 सेंट्स आज के लिए मुझे मिल गया है। नाउ व्हाट द राइटर इज सेइंग, I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, who was the Prime Minister at that time, our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. वो क्या कह रहे कि ये एक रीज़न, फिर ये जो अपना इंसिडेंट था, फिर ये इस इंसिडेंट को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बताया, आवर ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब और रीज़न बताया कि मतलब क्यों उनको इंडिया से इतना लव हो गया। नाउ the concluding para, and this para is also very important. The people I saw in India, those in the village as well as those in the high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. Now in the concluding para what the writer is saying कि the people I saw in India, मतलब मैंने जो इंडिया में जो लोगों को देखा, in the village and in the high office, दोनों लोगों को, but both have pride and a lively sense of decency and citizenship, और दोनों में मैंने एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो एक होता है, जो अपने में अपना एक जो सम्मान एक होता है, वो मैंने उन लोगों में देखा। They also have a passion of independence. It was 1950 and in 1947 our India got freedom, so he saw the passion also, मतलब वो एक जुनून, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन भी उन्होंने देखा पीपल लोग में कि जो उन लोगों को जो इंडिपेंडेंस मिली थी। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी। अब राइटर क्या कह रहे हैं, बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, वो अनएडुकेटेड इन बोथ, मतलब उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, शी वॉज इलिटरेट, वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन शी गेव मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उसने एक छोटे से इंसिडेंट में मुझे पूरी एक इंडिया का पूरा एक व्यू उसने मुझे दिखा दिया। नाउ आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं। नाउ रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट एंड क्वेश्चन आंसर, एंड दिस इज word and phrases. Now question answer and word and phrases you all have to do yourself, and if there is any problem in any question or in any reference to contest you all can ask me. अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप लोग को अपना नोट्स खुद से ही बनाना है। एंड ये भी देखो जो ईयर हैं, इस पे ये है कि मतलब ये कौन कौन से ईयर इस ये क्वेश्चन ज़्यादा आया है, दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। इसमें ईयर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये इतने ईयर इस सेंटेंस जो है रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट या फिर इसमें है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड में पूछा गया है। सो यू ऑल हैव टू फोकस ऑन डैट क्वेश्चंस, और वैसे और भी सब क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।